is the difference between matching information, matching headings, and matching features. So these are three different question types. Matching headings. So as you had already seen previously, matching heading questions, the answers appear only once. Answers appear as in the letters or the uh, paragraph letters or the paragraph labels, they appear only once. That means you can never have A appearing twice in your answer. So the answer to A will only be one, right? But for matching information, as we had seen, the letters may appear again, right? So it was already given as the instruction that you may use any letter more than once, right? May appear more than once. This is called matching features. So matching features is mostly like how you did your reference to context back when you were in school. So it will give you a box like this where there are some maybe list of researchers, list of books, list of jobs as we have here, and there will be some information maybe in the form of complete sentences or in the form of phrases that will be given over here. So we see 33, 34, 35, 36. Four questions are there. Since it is the last passage, it's going to be little difficult, and we are given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 list of jobs. 7 jobs that have been listed here and 4 options that we have to match. Now, how you have to do? So here again, the letters may appear again, but for this you really have to check instructions. If the instructions say that the letters may appear again, then only that will happen, otherwise it will not. So if we look at this question, the instructions are right over here. These questions are from 33 to 36, 4 questions. Look at the following statements and the list of jobs below. So you are given certain statements and the list of jobs here. Match each statement with the correct job. Write the correct letter from A to G in boxes 33 to 36 in your answer sheet. Since it does not say the letters will appear again, it will not happen. Had it been the मैम letters, yes. मैम पैराग्राफ लेबल अपेयर वंस मीनिंग क्या होगा? Paragraph ये labels. मैचिंग हेडिंग. Okay. So when you have a matching heading question, let's say this is the list of headings given to us. These are the headings. 8 headings have been given, and we are given these questions from 28 to 34. This is a matching heading question. So by the label appearing only once, I mean to say that when you have read para A, there will only and only be answer number 6 to this. For example, here we had found out that sixth is the right answer. So, in no way this sixth answer can appear ever again for any of these options. If it is appearing here, it will never appear again. This is what I mean by paragraph labels appear once. So for maybe for sixth answer, para A is the right मैम option. जो एक हेडिंग मतलब एक स्टेटमेंट का आंसर हो गया वो दोबारा किसी और स्टेटमेंट का आंसर नहीं हो सकता. एब्सोल्युटली करेक्ट. ऐसा हमने कल भी देखा था जब हम वो बाकी के मैचिंग इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे कि एक आंसर अगर एक बार आ भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको वो दोबारा भी आ सकता है. आप देख रहे हो, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वन. सो मैचिंग इन्फॉर्मेशन की यही बात है कि एक लेटर 2 बार आ सकता है. तो यहाँ पर हमारा कौन सा लेटर एफ जो था वो हमारा 2 बारी आया था, राइट. सो हियर मैचिंग इन्फॉर्मेशन में कोई भी लेटर 2 बार अपीयर हो सकता है. द सेम गोज विद मैचिंग फीचर्स ऑल्सो. तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन, हमें जो इंस्ट्रक्शन है, सॉरी, इंस्ट्रक्शन को ढंग से रीड करना है. अगर इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि वो अपीयर होगा तो वो अपीयर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा अपीयर. ठीक है. सो यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है.
Now, another thing that you have to take care with matching features is मैचिंग हेडिंग्स में ऑलवेज आपके पैराग्राफ जो है लेबल्ड होंगे अल्फ़ाबेटिकली. मैचिंग इंफॉर्मेशन भी आपके लेटर जो पैराग्राफ्स होंगे वो लेबल्ड होंगे अल्फ़ाबेटिकली. समटाइम्स आपके पैराग्राफ्स होंगे, समटाइम्स आपके सेक्शंस होंगे. पैराग्राफ आपने देखा एक सिंगल पैरा होता है एंड सेक्शन क्या होता है, दो पैरास भी हो सकते हैं उसमें और एक पैरा भी हो सकता है, तीन पैराग्राफ भी हो सकते हैं एक सेक्शन के लिए. तो ये हमेशा लेबल्ड होंगे इन्फो में और मैचिंग हेडिंग में, मैचिंग इन्फॉर्मेशन में, मैचिंग हेडिंग में. बट मैचिंग फीचर में ज़रूरी नहीं है कि ये लेबल्ड हो इसके पैराग्राफ्स. अगर आप देखोगे ये वाला पैसेज, आप देख रहे हो इट इज़ नॉट लेबल्ड अल्फ़ाबेटिकली, राइट. सो even if it is not labeled, we still have to do this question. It may still appear. Okay. चलो अब हम देखते हैं कैसे करना है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा हर चीज़ में वही होगा जो हम पहले करते हैं. तो हम सबसे पहले अपना पैसेज को स्किम रीड करेंगे. स्किम रीड में आपने बहुत सारा टाइम, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इट. ऑल यू हैव टू डू इज टू रीड द टाइटल. If there is any subtitle given to you, you read that also. And in case you're still not clear with the heading or with the understanding of the overall idea of the passage, then you can read the first and the last para. So now this is suggested for people who can read very fast. जो लोग बहुत एविड रीडर्स हैं, जिनको रीडिंग करना पसंद है, उन लोगों से कहा जाता है कि आप जब रीड कर रहे हो, जब स्किम रीड कर रहे हो, तो आप फर्स्ट लाइन ऑफ ईच पैरा पढ़ें, ईच पैराग्राफ. बट अगर आपको लगता है कि आप फास्ट रीडर नहीं हैं, तो आपको सिर्फ टाइटल और सब टाइटल पढ़ना है और अपना काम ख़त्म करना है. यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 1 to 2 minutes ऑन स्किमिंग, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर रीडिंग. सो फर्स्ट आपने स्किम कर लिया, तो लेट्स स्किम दिस टेक्स्ट क्विकली. एक बार स्किम करते हैं. तो सबसे पहले हम चलेंगे हेडिंग पर. हेडिंग हमारी क्या कह रही है, जॉब्स इन एंशिएंट इजिप्ट. इज इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू मीन बाय दिस जॉब्स इन इजिप्ट? मैम इजिप्ट में जॉब्स के बारे में बात हो रही है. एब्सोल्युटली. एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट इजिप्ट मीन्स काफ़ी पुरानी बातें हैं. ठीक है, ओके. तो अब डेफिनेटली इसमें डिफरेंट जॉब्स के बारे में कहा गया होगा. दैट्स व्हाट लुक्स लाइक. ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व हैं. राइट. फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन जो है इस पैसेज के वो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आप देख रहे हो एंशिएंट स्क्राइब्स के बारे में, एंशिएंट इजिप्ट में क्या कहा गया है, सेकेंड पैरा में क्या कहा गया है, एकदम से आ गया है फिफ्थ पैराग्राफ. दैट मीन्स आपका थर्ड और फोर्थ जो पैराग्राफ है, हो सकता है उसमें नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लाई करे, क्योंकि हर पैरा में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है. ठीक है. फिर इसमें वैल्यू ऑफ मात, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, विच वर्ड डिस्क्राइब्स द एटीट्यूड ऑफ इजिप्शियन गवर्नमेंट. तो हमने सिर्फ एक क्या किया, हमने एक नज़र मार ली क्वेश्चंस पर. आप चाहो तो ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, बिकॉज जब आप कर रहे होगे, जब आप अपनी पैसेज रीड कर रहे होगे, तो इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया कि आप ये MCQ पहले कर लो. तो कर सकते हो MCQ पहले, नो प्रॉब्लम इन इट. अब बिकॉज वी आर डूइंग लिस्ट मैचिंग फीचर्स फर्स्ट, तो हम मैचिंग फीचर्स ही देखेंगे सबसे पहले. तो आपने स्किम कर लिया. इसके बाद द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, आपको एक बॉक्स गिवन होगा हमेशा मैचिंग फीचर्स में. उस बॉक्स में कुछ लिस्ट ऑफ समथिंग होगा. हो सकता है लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स हो सकता है लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स हो सकता है लिस्ट ऑफ बुक्स हो, एंड इन दिस केस लिस्ट ऑफ जॉब्स. सो यू गो थ्रू द लिस्ट ऑफ जॉब्स and you read all of them carefully. So they are very well explanatory. Scribe, reed cutter, farmer, potter, stonemason, overseer and sculptor. ठीक है. Now you go back in the text. आप अपने टेक्स्ट में वापस जाएंगे. फिर आप क्या करेंगे, आप इन वर्ड्स को स्कैन करेंगे. स्कैन मतलब आप इन वर्ड्स को ढूंढेंगे. मैम जैसे कीवर्ड, ये हमारे कीवर्ड है. एब्सोल्युटली. यू हैव टू लुक फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये आपके एग्जैक्टली आपको विजिबल हो जाएंगे
इन ये पैराफ्रेज नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो बॉक्स वाले वर्ड्स होते हैं ये पैराफ्रेज नहीं होते, क्योंकि 90% केसेस में ये इसमें नेम्स लिखे होते हैं। तो नेम कैन डेफिनेटली नेवर बी पैराफ्रेज्ड। हो सकता है नेम्स में आपको फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दिया हो, जैसे पीटर, आपको ब्राउन, आपको ये दो नेम दिए। हो सकता है आपको फर्स्ट नेम ना देकर, मतलब इसमें तो पूरा नेम है बॉक्स में, लेकिन जब आप टेक्स्ट में जाओगे तो आपको हो सकता है ये लिखा अकॉर्डिंग टू ब्राउन। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये इसी पर्सन की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं है, ठीक है। बट द गुड पार्ट अबाउट इट इज़ कि ये फर्स्ट लेटर कैपिटल है दोनों चीज़ों में, फर्स्ट नेम भी सेकंड नेम भी, तो ये इजी है टू फाइंड। अब क्योंकि ये सारे प्रॉपर नाउन्स नहीं है, एक भी इनमें से प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन है, इनको ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड इट बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन। सो नाउ आवर जॉब इज टू फाइंड these jobs: scribe, reed cutter, farmer, potter, stone mason, overseer and sculptor। तो सबसे पहले हम स्क्राइब ढूंढते हैं फटाफट से। मैम स्क्राइब जॉब क्या होता है? स्क्राइब वैसे तो इफ़ यू डोंट नो देन इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया टू नो इट, बिकॉज आप इसमें नहीं ढूंढ पाओगे। बट स्क्राइब का वैसे मतलब होता है जो लोग चीज़ें लिखते हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है स्क्राइब्स नोटेड द एवरीडे एक्टिविटीज़। तो स्क्राइब क्या होते हैं, जैसे राजा महाराजा हैं वो अपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो स्क्राइब क्या होते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो शॉर्ट हैंड की तरह से फटाफट फटाफट चीज़ों को लिखते जाते हैं, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से ऑक्यूपेशन ऑफ स्क्राइब की बात हुई है, स्क्राइब इसमें बहुत बारी आया है ना मैम। मैम फर्स्ट पैरा में सेकंड लाइन। फर्स्ट पैरा में सेकंड लाइन। तो स्क्राइब का अगर आप लिटरेट हैं तो आप स्क्राइब बन सकते हैं, ठीक है। अप्रेंटिसशिप फॉर दिस जॉब लास्टेड मैनी ईयर्स। अभी हमें इतना सारा नहीं पढ़ना, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इन वर्ड्स को सर्च कर रहे हैं, कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखा कि स्क्राइब जो है 3-4 बारी आया है, यहाँ भी स्क्राइब स्क्राइब, ठीक है। अब हम देखते कहीं और स्क्राइब तो नहीं है, डोंट सी इट हियर, राइट, सो वी लीव इट, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले पर। सेकेंड वाला मैम रेड कटर है सेकंड पैरा की लास्ट सेकंड लाइन। वेरी गुड, इसको बोलते हैं रीड कटर। तो अब आप पूछोगे रीड क्या होता है। रीड क्या होता है, एक तरह का पेपर होता है जो पेपरस से बनता है। देखो ये पेपरस, एक दिन हमने पेपरस वाला भी पैसेज किया था इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने मैचिंग हेडिंग्स का किया था, तो वो भी इजिप्ट में ये पेपर बनता था। तो उसको काटने वाले को कटर बोलते हैं, रीड कटर, ठीक है। तो उसकी जॉब में क्या क्या करना होता है, ठीक। फार्मर्स हमने देखा था एक वर्ड, तो फार्मर इज ऑल्सो हियर। देन थर्ड पैरा की सेकंड लाइन। परफेक्ट, वेरी गुड। देन इज देयर एनी अदर जॉब दैट यू सी ओवर हियर? पॉटर, इसमें पॉटर आपको नजर आ रहा है मैम फोर्थ पैरा की लास्ट सेकंड लाइन। एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। पॉटर, पॉटर क्या करता था, प्रोड्यूस कप्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर कोई ऑक्यूपेशन मेंशन्ड है, टेक अ लुक एंड मैच इट विद दैट बॉक्स। मैम सेकंड पैरा की लास्ट थर्ड लाइन में है स्टोन मेसन। स्टोन मेसन, स्टोन सेकंड मेसन, पैरा की यस गॉट इट। स्टोन मेसन, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्टोन मेसन? नो मैम। ओके, स्टोन मेसन क्या होता है, जो चिजल से और हथौड़े से कुछ कार्विंग करता है, टूल्स, कुछ 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 चीज़ें बनाता है, ठीक है। कट एंड शेप करता है, पत्थर को लोहार, नो लोहार नहीं मैम, जैसे वो शिल्पकार। हाँ शिल्पकार, यस गुड गुड। इसमें कोई लेबरर तो नहीं है, लेबरर भी है इसमें, इससे पहले वाले पैरा में। इज देयर एनी वर्ड लेबल्ड लेबरर? नॉट श्योर, ओके। लेबर, फार्मर्स है, फार्मर फिर से आ गया, एक आर्टिस्ट भी आ गया, नॉट श्योर, ओके। देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्कल्प्टर भी है, ओवरसियर भी है। अच्छा मैम ओवरसियर ये लास्ट सेकंड पैरा की फोर्थ लाइन में। ओवरसियर, करेक्ट, ओवरसियर मिल गया। और स्कल्प्टर, और इसी पैरा में मैम लास्ट लाइन, इसी पैरा की लास्ट। वेरी गुड, ठीक है। अब दूसरा काम आपका क्या होगा, आपने ये सारे वर्ड्स को ढूंढ लिया, आर्टिस्ट नहीं था, और हमने क्या था, ये कट एंड शेप, ये इस टाइप की चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा नाम सबसे कम आया है। आप देख रहे हो ये सब नेम्स एक एक बार आए हैं, तो एक बार हम इनको सबको पढ़ लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या करता था।
Overseer organized करता था men into teams to transport the stones and the sleds. Once the pyramid was complete, inner chambers needed to be decorated by scribes. फिर से scribe का काम आ गया, who painted elaborate images on the walls. और इंटीरियर वर्क ऑन द टूम्स एंड टेम्पल्स, इंटीरियर वर्क कौन करता था? स्कल्प्टर करते थे, who could expertly cut away the stone and certain figures on the scene that had been painted. स्कल्प्टर ये करता है, तो स्टोन मेसन क्या करता है? स्टोन मेसन, दिस जॉब वाज डन बाय, तो दिस जॉब, अगर दिस जॉब बोला जा रहा है तो ये इससे पहले वाली बात हमें बतानी है, क्या है? दे कुड बी कट एंड शेप, तो किस चीज़ को कट एंड शेप करना है? देवर, देवर, तो ये दे कौन है? स्लेड्स, यानी कि ह्यूज ब्लॉक्स को पहले वो शिफ्ट करते थे ट्रांसपोर्ट करके, और फिर जब उसको कट और शेप करने की बारी आती थी तो स्टोन मेसन ये काम करता था, कट और शेप करता था। लेकिन इसके ऊपर कुछ कलाकृतियाँ या फिगर्स बनानी है तो वो स्कल्प्टर करेगा। ठीक, अब हम एक बार चलते हैं अपने ऑप्शंस पर, एक बार लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस वंस। Was unable to work at certain times. Do you understand this phrase? No. Was unable to work at certain times. वो unable था, मतलब वो नहीं कर पाता था काम कुछ समय में, कुछ टाइम्स में वो काम नहीं कर पाता। अब इनमें से कौन था वो ऐसा जो कुछ टाइम तक काम नहीं कर पाता था, कुछ कुछ टाइम्स में काम नहीं कर पाता था? ठीक है। Who divided workers into groups. वर्कर्स को ग्रुप्स में कौन डिवाइड करता था? ठीक है। फेस्ड डेली हजार्ड्स, डेली हजार्ड्स को कौन फेस करता था? और किसको लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग दी जाती थी? ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड दीज ऑप्शंस फ्रॉम बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। तो स्कल्प्टर ये काम करता था, नॉट रियली श्योर कि वो उसमें आएगा कि नहीं आएगा। ओवरसियर, ओवरसियर ऑर्गेनाइज्ड men into teams. डू यू अंडरस्टैंड? कौन ऑर्गेनाइज करता था मेन को टीम्स में? Divided workers into groups. So this would be the job of the overseer. तो इसका आंसर क्या हो गया? F. ठीक है। Is it making sense? Yes, ma'am. Okay. Now let's move up. Let's move up and एक स्पेशलिस्ट चाहिए. This would have been a okay. So this job was done by skilled masons, skilled stone masons working with chopper chisels and wooden mallets. As the chisels could get blunt, a specialist in sharpening would take the tool, sharpen it and bring it back. This would have, अब स्पेशलिस्ट की तो इसमें बात ही नहीं है, तो स्पेशलिस्ट हम नहीं करेंगे. It is not there. स्कल्प्टर की भी कुछ ज़्यादा इसमें. Okay, let's move up and find potter. पॉटर का क्या काम था? पॉटर produced cups and bowls, was as important to the community as the scribe, and the amulet maker is as vital as the pharmacist. तो मतलब amulet maker और इनका काम काफ़ी important था. Contribute to the economy, community, no skills would have been considered non-essential. Okay, farmers, farmers का काम देखते हैं. They did not own the land. Okay, they did not own the land they worked. They were given food, implements, living quarters for payment of their labor. Although, although there were many glamorous jobs than farming, farmers were the backbone of the Egyptian economy and sustained everyone else. Okay, reed cutter. Reed cutter who harvested papyrus plants along the Nile. ये farmer was. Sorry. जो फार्मर वाला ऑप्शन था, आई थिंक वो हुआ इसमें हार्वेस्ट पे. हार्वेस्ट के देखते हैं एक बार, हार्वेस्ट का कोई ऑप्शन है? फार्मर वाला तो नहीं थे. वो फेस नो, नहीं ये नहीं. बट मुझे ये वाला लग रहा है जो मैं अभी पढ़ रही थी, रीड कटर वाला. कैसे? had to bear in mind he worked in an area that was also home to wildlife and at times could prove fatal. फेटल मतलब वो ऐसे जंगली जानवरों के बीच उनका काम होता था और वो उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता था, तो इसलिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था.
तो ये क्या हो सकता है, हजार्डस सिचुएशन में वो काम करते थे, फेस्ड डेली हजार्ड्स, राइट। इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर बाद में इससे रिलेटेड हमें कुछ और मिलता है तो हम उसको चेंज कर देंगे, तो ये हमारा बी हो सकता है, ठीक है। ओके, फेस डेली हजार्ड्स, क्योंकि उनका अब डेली तो नहीं लिखा है इसमें, बट इट इज़ मेंशन दैट देयर जॉब कुड प्रूव फेटल। ओके, तो स्क्राइब क्या कहता है, पर्सन को लिटरेट होना चाहिए अगर स्क्राइब बनना है तो, ठीक है। फर्स्ट हैड टू बिकम अ स्क्राइब, अ पर्सन हैड टू बी लिटरेट, सो फर्स्ट हैड टू बिकम अ स्क्राइब। अच्छा, अब इसकी अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप आपको क्या लगता है क्या होता है अप्रेंटिसशिप? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अप्रेंटिसशिप? नो आइडिया। उसकी जरूरत, जॉब के लिए क्या जरूरत है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जॉब के लिए अप्रेंटिसशिप का मतलब है एक ट्रेनिंग जो लोगों को दी जाती है, ठीक है। जैसे बेसिकली अनपेड या वॉलंटरी टाइप की जो ट्रेनिंग दी जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, इसको हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप। तो उसकी अप्रेंटिसशिप इटसेल्फ लास्टेड फॉर मेनी ईयर्स। आपने एक क्वेश्चन नहीं देखा था कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग आवर्स ऑफ ट्रेनिंग थी? 36 हाँ, तो ये स्क्राइब होगा। underwent a long period of training. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तो ये डेफिनेटली स्क्राइब होने वाला है। तो ए होगा इसका, ठीक है, ए होगा इसका। बाकी एक बार और देख लेते हैं इसमें। आई थिंक आई सॉ फार्मर समवेयर एल्स एज वेल, फार्मर्स, ये रहा, ये रहा। These people were mostly farmers who could do nothing with their land during the months when Nile River overflowed its banks। मतलब जब नाइल रिवर में बाढ़ आ जाती थी, फ्लडिंग हो जाती थी, तो वो लोग अपनी लैंड पर भी कुछ काम नहीं कर पाते थे, नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वो कुछ लोग कुछ टाइम के लिए जॉबलेस रहते थे, वो काम ही नहीं कर पाते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो आपके जो ऑप्शंस होंगे सी, एफ, बी, ए, ठीक है। तो आपने ऐसे इस चीज़ को करना है, मैचिंग फीचर्स को। सबसे पहले आपने स्किमिंग करी, आपने ये बॉक्स पढ़ा, इसमें नाम ढूंढे, इनको स्कैन करा, इसके बाद इनके आसपास के सेंटेंसेस पढ़े, फिर आपने अपने ये ऑप्शंस पढ़े और इनको बैक एंड फोर्थ मीन्स कभी आप नीचे जा रहे हैं, आई मीन कभी आप ढूंढ रहे हैं, कभी आप ऊपर जा रहे हैं, पैसेज में जा रहे हैं, एंड यू आर मैचिंग the options with the correct alphabet. Make sure कि इसमें काफ़ी सारी पैराफ्रेजिंग होगी। जैसे इसमें अप्रेंटिसशिप था, अप्रेंटिसशिप आपको नहीं समझ आ रहा था, है ना, क्या होता है एग्जैक्टली। हजार्ड्स, उसके जो हजार्ड्स हैं वो फेटल भी हो सकता था, मतलब मौत भी हो सकती थी उसकी। वो अपनी टीम को डिवाइड करता था, मेन को डिवाइड करता था टीम्स में, तो वर्कर्स को डिवाइड कर रहा है ग्रुप्स में। और वो क्या था, वो अपनी लैंड पर काम नहीं कर पा रहे थे जब नाइल ओवरफ्लो हो रही थी। अब सर्टेन टाइम वो डेफिनेटली नहीं देगा, अनेबल टू वर्क उसने नहीं दिया, तो एवरीथिंग वाज पैराफ्रेज, बट स्टिल यू वर एबल टू फाइंड द आंसर। दिस इज हाउ मैचिंग फीचर्स आर टू बी डन। फाइन।